Good morning, class 9th. Today we will start your next topic, that is particle nature and their basic units. And what are the contents for this topic? That is atom and molecules and the laws of chemical combination, only laws of constant proportion, but I will explain you also the laws of conservation of mass and atomic and molecular masses and mole concept and relation of mole to mass of the particles and numbers. So let's see what is atoms. Yesterday we have take also the geometry of this topic, so it is the similar video of yesterday class, that is atom. An atom is the smallest particle that can take part in chemical reaction. Atom is the smallest particle of the matter of an element that can take part in a chemical reaction. Clear? And the atoms are very small in size. The size of an atom is indicated by the radius of the atom, that is known as radius of the atom, that is known as atomic radius. And suppose that the structure of atom is in the shape of a spherical and this one is the shell, so the distance between the center of the nucleus to the outermost shell is called atomic radius, and it is this atomic radius is represented in nanometer. This atomic radius is represented in nanometer, and 1 nanometer, that is equal to 10 to the power minus 9 meter. Hydrogen is the first element of the periodic table, and it is the smallest. The atomic radius of hydrogen is 0.037 nanometer, or you can say 0.037 into 10 to the power minus 9 meter. This is the atomic radius of hydrogen. Hydrogen is the first atom of the periodic table and the smallest atom of all, and we cannot see the atoms with the help of powerful optical microscope, and only we can see this atom with the help of STM, that is scanning tunneling microscope, that is scanning tunneling microscope. Only we can view or we can see the atom, the size of the atom with the help of scanning tunneling microscope. And now, what was the criteria or what was the base how we can represent the atoms
क्या तरीका था कि हम एटम को कैसे किसी सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल टू रिप्रेजेंट एलिमेंट इन शॉर्ट वे। सो लेट्स सी द डाल्टन्स एटॉमिक symbol, how Dalton used these symbols to represent an atom. So let's see. So Dalton was the first scientist जिसने इन एलिमेंट्स को अपने तरीके से सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया। ठीक है, कैसे था? हाइड्रोजन को एक स्फीयर के अंदर डॉट रख के रिप्रेजेंट किया, कार्बन को स्फीयर को बिल्कुल ब्लैक कर दिया, ऑक्सीजन को वैकेंट स्फीयर के द्वारा शो किया, फॉस्फोरस को बाय दिस वे, सल्फर प्लस साइन को स्फीयर के अंदर लिया, प्लेटिनम को स्फीयर में पी लिख करके, आयरन को आई, कॉपर को सी, सिल्वर को एस, गोल्ड को जी लिख करके और क्या लगा दिया साइड में लाइन शो कर दी। यानी गोल्ड कैसा होता है देखने में, दैट इज सिमिलर टू द गोल्ड का जो कलर होता है वो येलो होता है, और जो सन की जो लाइट्स रेज आती है जो सारा हमको दिखता है वो भी येलो कलर का होता है, इसलिए गोल्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। लेड को एल के द्वारा और मरकरी को, चूंकि मरकरी को रिजेंबल किया मून के द्वारा, मून को ऐसा होता है ब्लैक ब्लैक डॉट के द्वारा क्या किया डाल्टन ने, इनको शो किया। बट these Dalton symbols for the elements were difficult to draw and inconvenient to use. इनको हम आसानी से ड्रॉ नहीं कर सकते और इनको आसानी से प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए so Dalton symbol are only for historical importance. They are not used at all. After that, J.J. Berzelius of Sweden, who proposed that the first letter of the name of any element be used as its symbol. यानी जो पहला लेटर है, जैसे हाइड्रोजन का क्या लिया उन्होंने पहले लेटर को, और हाइड्रोजन का सिंबल आप क्या पाते हैं, दैट इज एच। और कुछ एलिमेंट्स को मतलब इसने भी डिफरेंट पैरामीटर्स यूज किए, कुछों को शो किया उसके फर्स्ट लेटर के द्वारा, कुछों को पहले दो लेटर के द्वारा, फर्स्ट और सेकंड, जैसे कैल्शियम Ca, और कुछों को फर्स्ट और थर्ड के द्वारा, और कुछों को किसके द्वारा, उन्होंने क्या चूज किए, लैटिन नेम चूज किए, लैटिन नेम। तो लेट्स सी हाउ बर्जीलियस यूज्ड, ये बर्जीलियस यानी डाल्टन के जो सिंबल हैं वो केवल हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए हैं, डाल्टन के सिंबल्स को इस समय यूज नहीं किया जाता, लेकिन जो बर्जीलियस ने सिंबल आपको दिए हैं वही सिंबल्स को हम आजकल यूज करते हैं। देयर इज ए table that's known as periodic table, and there are more than 120 elements in the periodic table. तो first element of the periodic table is the hydrogen. हाइड्रोजन को हम इसके द्वारा H के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो ये जो जितने भी एलिमेंट हैं, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट बाई द यूज ऑफ सिंबल। सिंबल को लेकर के हम कैसे यूज करते हैं, इट मीन्स क्या कह सकते हैं उसको, मॉडर्न सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स। सो लेट्स सी मॉडर्न सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, दिस मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट टाइम, मतलब ओल्ड सिंबल थे जो डाल्टन ने दिए थे, मॉडर्न सिंबल को किसने प्रपोज किया था, बर्जीलियस। बर्जीलियस ने सबसे पहले क्या बताया कि जो फर्स्ट लेटर है, आप फर्स्ट लेटर को क्या करेंगे, यूज करेंगे सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H। अनदर वन इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है O। बट जैसे जैसे एलिमेंट्स की संख्या बढ़ने लगी तो क्लैश क्रॉस होने लगा, यानी ऐसे भी एलिमेंट्स आ गए जो किसके द्वारा से शुरू थे, एक ही लेटर के द्वारा शुरू थे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कार्बन, कैल्शियम,
क्लोरीन एंड कोबाल्ट। तो अब क्या लिया उन्होंने, पहला और दूसरा लेटर को प्रयोग किया। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, कार्बन को सी के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया। कैल्शियम, कैल्शियम के अंदर हमने फर्स्ट और सेकंड लेटर को प्रयोग किया। वेयर एज इन क्लोरीन, इन द केस ऑफ क्लोरीन वी यूज्ड फर्स्ट एंड थर्ड लेटर। वेयर एज इन कोबाल्ट, in the case of cobalt we used first and second letter to symbolize this, but there are, it should be noted that in two letter symbol the first letter is capital। दो लेटर सिंबल में जो पहला लेटर है वो क्या होगा, कैपिटल होगा। whereas the second letter should be a small letter। and the symbol of copper, कॉपर की यदि हम बात करें तो कॉपर के अंदर क्या आ रहा था, कोबाल्ट में हमने CO लिया, यहाँ भी क्या आ रहा था CO। इसलिए कॉपर को सिंबलाइज करने के लिए हमने इसका लैटिन वर्ड यूज किया, दैट इज Cu। Cu कहां से लिया, दैट इज फ्रॉम क्यूप्रम, यानी हमने एलिमेंट को, मतलब बर्जीलियस ने एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका प्रयोग किया, लैटिन वर्ड्स का भी, उनके लैटिन वर्ड्स का भी प्रयोग किया। तो यहां मैं एक टेबल आपको देता हूं जिसके अंदर हमने पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनके लैटिन वर्ड को हमने प्रयोग किया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये बहुत पूछा जाता है। सो लेट्स सी द टेबल विच शोन द एलिमेंट्स बाय इट्स लैटिन नेम। लेट्स सी, so let's see with me symbols derived from the Latin names of the element। First one is sodium। सोडियम का सिंबल होता है Na, और इसको कहां से लिया है, इसके लैटिन वर्ड, लैटिन नेम दैट इज नेट्रियम से लिया है। सेकंड वन इज पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल K होता है, उसको कहां से लिया है, कैलियम से लिया है। एंड थर्ड वन इज आयरन। आयरन का सिंबल दैट इज Fe एंड दैट इज लैटिन वर्ड इज फेरम। फोर्थ वन इज कॉपर। कॉपर को Cu से, दैट इज क्यूप्रम। एंड फिफ्थ वन इज सिल्वर, दैट इज सिंबल इज Ag एंड अर्जेंटम, लैटिन वर्ड इज अर्जेंटम। नाउ सिक्स वन इज गोल्ड। Symbol of gold is Au, that is called aurum, AURUM, and the next one is mercury। Mercury, symbol of mercury is Hg, that is called hydrargyrum। Hydrargyrum, Latin word is hydrargyrum। and next one is lead। symbol is lead, Pb, Latin word is plumbum। and the next one is, last is tin, symbol is Sn, or Latin word is sten। so these are the elements जिनको हमने कहां से लिया, लैटिन भाषा जो होती है, लैटिन भाषा का जो लेटर है वहां से हम इन सिंबल्स को लिया। तो देयर आर अबाउट 104 एलिमेंट्स। वैसे तो 120 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन ये था झगड़ा सिर्फ किसका, बर्जीलियस ने। जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती रही उनके नाम हम देते रहे, कुछ एलिमेंट्स के नाम जो उनके डिस्कवरर हैं, ठीक है, उनके नाम पर भी हैं, ठीक है। जैसे मेंडलीव का है मेंडलेवियम, ठीक है, रदरफोर्डियम, ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनको खोजा गया था। तो जिन साइंटिस्ट ने, जो उनके डिस्कवरर थे, उनके नाम पर ही क्या रखे गए हैं, उनके सिंबल रखे गए हैं। एंड अनदर मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि आफ्टर 100, यानी मैंने बताया पीरियोडिक टेबल के अंदर लगभग 100 से ज्यादा एलिमेंट हैं, तो 100 से अबव एलिमेंट्स को क्या देने के लिए, नाम देने के लिए, उनकी नेमिंग करने के लिए और उनको सिंबल देने के लिए, ठीक है, किसने,
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दैट इज नोन एज IUPAC, और विद इन शॉर्ट यू कैन से IUPAC। अब जो भी सिंबल देगा वो ये IUPAC देगा। सारे के सारे सिंबलों को देने के लिए साइंटिस्ट ने मिलकर के इस यूनियन को क्या किया है, डेवलप किया है। यानी अब आप आगे जाकर के हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि 101 का जो नाम है वो इनके जैसा नहीं है, वो कुछ अलग है। क्लियर? तो ये था आपका सिंबल ऑफ द एलिमेंट। नाउ आपका अगला जो टॉपिक है दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, लेकिन मैं जो फर्स्ट लॉ है, देयर आर ओनली 2 लॉज। द फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ, and the second one is law of constant proportion. So let's see what is the law of conservation of mass. Law of conservation of mass. According to this law was proposed by Lavoisier, father of chemistry. That is law of conservation of mass, and it was proposed by Lavoisier या लेवासिए, और इसको दिया था 1774। He is also known as father of chemistry. And according to this law, इस नियम के अनुसार matter is neither created nor destroyed in a chemical reaction. Matter is neither created nor destroyed in a chemical reaction. It means matter, anything which occupies space and has mass, matter is neither created nor destroyed in a chemical reaction. It means according to this law, the law of conservation of mass, in a chemical reaction, total mass of product is equal to the टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब ये नियम होगा तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज जस्ट इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये आना चाहिए। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा भी देख सकते हैं। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करें, गर्म करें, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये ऑन हीटिंग इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हमने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया, हीट किया, बर्न किया, तो उसमें 56 ग्राम क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, एंड 44 ग्राम क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इट मीन्स दिस लॉ वाज ट्रू। 100 ग्राम यहाँ लिया हमने, दैट इज द मास ऑफ रिएक्टेंट, एंड 56 प्लस 44 दैट इज इक्वल टू 100। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दे तो कितना आएगा, 100 आएगा। It means total mass of reactant is just equal to the total mass of product. Okay, so in this video this is the first law, that is law known as law of conservation of mass. सेकेंड लॉ को हम आगे अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स आप इसको ठीक से देखें, पढ़ें। कल जियो मीट जो हुई थी हमारी वो इसी टॉपिक के ऊपर हुई थी। So don't be bothered. Have a nice day. Thank you very much. If you have any doubt regarding this, then you can contact me. Okay? Thank you very much.